Hello, friends. Welcome to Kalsi Estate. My name is Kalsi. I'm a father of a wonderful son, husband of a caring woman. I am into industry from last 25 years, and I take my job as serving rather than selling. And I love giving plenty of free advice in real estate. तो आज का टॉपिक है दोस्तों Sunteck World at Naigaon by Sunteck Realty. Let's begin with the show. So friends, Sunteck, as everybody knows, Sunteck is a branded developer and it's a listed company. And secondly, Sunteck World at Naigaon, it's around 150 acres development is there, 50 acres, 150 acre plot is there, in which they had come with phase 1, which was Sunteck West World. And after that, they have launched the second phase, which is known as Sunteck's Max World. So today we will discuss about Sunteck's Max World. So Sunteck West World जो फेज 1 में जो इनका डेवलप्ड हुआ था, उसमें करीबन 10 एकर्स लैंड ऑक्यूपाइड हुआ था और अब उसका पोजीशन दिसंबर 21 में दे रहे हैं. और Sunteck's Max World जो कि 15 एकड़ में डेवलप्ड हो रहा है और उसका पोजीशन थोड़े टाइम बाद होगा. पर ये जो Sunteck West World है, दिस इज फेज 2 ऑफ Sunteck World. सो Sunteck वेस्ट वर्ल्ड और Sunteck's मैक्स वर्ल्ड में ये दोनों फर्क है. अब मैक्स वर्ल्ड में सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि मैक्स वर्ल्ड फेज 2 में क्या है. तो इसका पहले मास्टर लेआउट हम लोग देख लेते हैं. सो फ्रेंड, दिस इज द मास्टर लेआउट ऑफ फेज 2 विच इज Sunteck's मैक्स वर्ल्ड. अब मैक्स वर्ल्ड में आप देखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बिल्डिंग्स है. जो ये 12 बिल्डिंग्स में 8 फ्लैट है हर एक विंग के अंदर. 1 2 3 4 5 6 7 8 फ्लैट है. और ये जो बिल्डिंग है ये ग्राउंड प्लस 23 स्टोरी की बिल्डिंग है. और ये सारे बिल्डिंगों में 1 and 2 BHK के फ्लैट्स है. जैसे 8 फ्लैट्स है तो 4 फ्लैट 1 BHK के होंगे और 4 फ्लैट जो है वो 2 BHK के फ्लैट है और ग्राउंड प्लस 23 स्टोरी की बिल्डिंग्स है. उसके बाद उन्होंने लॉन्च किया ये जो टावर यहाँ पर है, ये वाला. अब ये पुराना प्लान है, इसके वजह से ये पिक्चर ऐसे दिख रहा है. अदरवाइज इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट साइड भी इस टाइप की बिल्डिंग्स है. जैसे आप यहाँ पर आप ये ट्रायंगुलर 1 2 3 4 5 6 फ्लैट्स वाली बिल्डिंग्स आप देख रहे हो. तो ऐसा 1 2 3 4 5 और 6 टावर ऐसे ही आएगा. यहाँ पर थोड़ा सा प्लानिंग चेंज किया है इन्होंने, क्योंकि ये पुराना प्लान है तो उसके हिसाब से ये बिल्डिंग जो है वो यहाँ पर वो ऐसे बिल्डिंग दिख रही है. पर अभी जो आएगा वो ऐसे आएगा क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स फेज 2 में जो ये पार्ट है, जो फेज 2 का जो इस स्क्वायर पोर्शन में वो 3 BHK लेकर आ रहे हैं. तो ये जो टावर है ऐसे वाला सेम टावर ऑपोजिट साइड में है जिसमें सिर्फ 3 BHK के फ्लैट्स है और ग्राउंड प्लस 23 स्टोरी है. एमिनिटीज की अगर हम लोग बात करते हैं तो एमिनिटीज डेवलपर ने करीबन 54 एमिनिटीज दिया हुआ है. तो एमिनिटीज देयर इज अ फुल फ्लैश, ऑल loaded amenities are there, all full fledged 100% amenities are there in this complex. So everything is available in this complex. So few to read out, I'll just read out to you. There is a good lobby entry, there is the exit gate is there, there are drop off, then grand linkage, botanical garden, senior citizenships, shaded sit out, nest pavilion, fitness zone, maze, amphitheater, waterside yoga garden, bridge walk, skating court, barbecue pavilion, swimming pool, water feature in club, practice half, tennis lawn, basketball court, Pachi lawn, badminton court, informal sitting, birds pavilion, circle green and cricket, tech, weaving pavilion, sand pit, senior sitting, forest sitting, water body, sitting pavilion in flower garden, then waterside walk, viewing deck, viewing pavilion, sculptural sitting, mini forest, welcome water body, gate complex, pebble court, pool deck garden, fitness strip, yoga garden, climbing wall, swimming pool, flora garden, pocket
parks, retail walk, grand dunes, mount, cycle track, stepped sitting in yoga garden, cycle stand, table tennis, shaded sittings. So all these amenities are there in this complex, which are reasonable amenities and well, जो ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो सारा एमिनिटीज़ प्रोवाइडेड है. 54 एमिनिटीज़ अपने आप में काफ़ी बड़ा एमिनिटीज़ होता है कॉम्प्लेक्स के अंदर. कोई फैमिली अगर जाकर कॉम्प्लेक्स में अगर रहती है तो उनको बच्चों को लेकर बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. कोई भी स्पोर्ट्स को लेके, कोई भी फंक्शन को लेकर, कोई भी गेट टुगेदर को लेकर, इतनी सारी एमिनिटीज़, आप कहीं पर भी बच्चे खेल सकते हैं. इतना सारा एमिनिटीज़ वगैरह दिया हुआ है फॉर सीनियर सिटीजनशिप, फॉर यंग even at the holidays you can just go down and walk in the garden, and even for the children there are so many amenities are provided in this complex. So this is about the master layout of the plot, and this is phase 2, which is known as Sunteck West World phase 2. So when we speak about Sunteck Max World, they have Sunteck, as you know, they are branded developer and they have built many commercial and residential complex. तो उनका Sunteck Icon जो है BKC में already completed है. Sunteck BKC 51 है, Sunteck Center at Ville Parle है, Sunteck Grandeur at Andheri West है. Then multiplex entertainment wise they have made, retail and entertainment wise they have made, commercial places they have made, high street and retail plaza they have made with some food courts and fine dining spaces. So all these retail and commercial hubs they have already made, and some of the commercial hubs are already completed. So basically these are all commercial buildings which they have already completed. And below you see these are residential, which is Signia Isle, Signature Island, Signia Pearl, which is all at BKC. OCs are received for this building. And then again Signia High at Borivali East, which is again completed. Then Signia Waterfront at Airoli, and 4th Avenue Sunteck, which is at Goregaon West, जिसको हम लोग ODC बोलते हैं, Oshiwara District City. So Sunteck is a branded listed company, and they are very fast growing company in Mumbai and in other cities of Mumbai also. And they have 30 million square feet, 25 projects of various stages are going on. And they have all the segment categories like Uber luxury, ultra luxury, premium luxury, and aspirational luxury segments. So they make all type of flats are there. And so this is Signature Island at G Block BKC, one of the finest residential complex which is at BKC. Even the brand like Aishwarya Rai has taken, and Sonam Kapoor has taken flat in BKC in Signature Island. So when we speak about Sunteck Max World, so you see the ecosystem over here. Naigaon railway station is very close by, just hardly 2 kilometers from this complex, and Borivali via Western Express Highway, it is around 20 kilometers from a Western Express Highway. And Ju Chandra railway station, which is very close. It's a hardly walking distance from this complex. And Naigaon Vasai Link Road, there's a link road which will be connecting from Naigaon to Vasai, and from Vasai to Nalasopara, and from Nalasopara to Virar, it is already connected. Only thing, there's a gap between this Naigaon and Vasai. So this link road will be connecting very soon, which will be running parallel to railway station, Western Railway Station, from the east portion of the Naigaon station. Then there is Mumbai Ahmedabad highway, which we call is at NH48 highway. ये highway जो है, जो सीधा दमन और आगे चलकर सूरत, बड़ौदा और गुजरात, अहमदाबाद तक जाता है आगे. So this highway is hardly, I think, so 4 kilometers you have to come out to the highway. And there are banks and ATMs are very close by to this area. Even inside the complex, developer is giving lots of retail plaza is there, commercial hubs are there, and few ATMs will be also installed inside the retail plaza. And हो सकता है जो shops वगैरह नीचे बना रहे डेवलपर, वहाँ पर कोई banks वगैरह आ जावे, नजदीक में कॉम्प्लेक्स के अंदर ही आ जावे, तो बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ सकती है.
Then Golden Park Hospital is in Naigaon itself. There is a Platinum Hospital, then Kalandi International School and 7 Square Academy School. This is very close to the complex. So this is how the Mumbai is. It narrows down below over here. This is Andheri, this is Borivali. और जैसे यहाँ से बोरीवली से वेस्टर्न सबब से आगे जाते हो, भाईंदर क्रॉस करते हो, तो भाईंदर का ये जो है ये क्रीक है जो यहाँ पर अंदर आता है यहाँ तक। ये क्रीक आगे घोड़बंदर रोड थाने तक जाता है ये, पर ये मेजर पोर्शन है क्रीक का जो यहाँ से सी से जो क्रीक जो अंदर आता है यहाँ पर। तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ये है NH8 हाईवे, जो काफ़ी बड़ा हाईवे। दिस हाईवे गोज टू विरार एंड देन फर्दर टू दमन एंड देन टू सूरत एंड गुजरात साइड। यहाँ से जैसे ही आप ये भाईंदर ब्रिज जैसे ही आप क्रॉस करते हो तो थोड़ा सा आगे जाने के बाद आपको लेफ्ट लेना है और 4 किलोमीटर आप अंदर जाओगे तो यहाँ पर ही सनटेक सिटी लोकेटेड है। अगर आप रेलवे से आते हो, आप ट्रेन से आते हो, तो ये नायगांव स्टेशन है। यहाँ से उतरने के बाद यहाँ से भी आपका 2 किलोमीटर से डिस्टेंस पर यहाँ पर सनटेक वेस्ट वर्ल्ड है। और एक ब्रिज जो है यहाँ पर, ये ब्रिज जो जैसे ये कनेक्ट हो जाएगा, ये ब्रिज का अभी काम चल रहा है। जैसे ये ब्रिज कनेक्ट होगा तो यहाँ से ये पैरेलल रोड, बोरीवली से पैरेलल रोड, जैसे ये लिंक रोड है जो यहाँ से पैरेलल चलेगा टुवर्ड्स वसई तक। वसई से नालासोपारा और विरार तक तो आगे कनेक्टेड ही है लिंक रोड, पर नायगांव से वसई कनेक्ट करना बाकी है। नायगांव से वसई कनेक्ट, सो जैसे ही लिंक रोड नायगांव से वसई, ये ईस्ट साइड की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। फिर एक वेस्ट साइड से जो ब्रिज बनेगा, ये वेस्ट से सीधा आगे जाके वसई से कनेक्ट होते हुए नालासोपारा और आगे विरार तक कनेक्ट होगा। सिर्फ ये ब्रिज जो है, रोड ब्रिज नहीं बनाता यहाँ पर, तो ये ब्रिज का काम ऑलरेडी चल रहा है। जैसे ये ब्रिज बन जाएगा तो बाय रोड यहाँ से वेस्ट से भी लोग नायगांव क्रॉस करके वसई तक जा सकते हैं, उनको हाईवे तक आने की जरूरत नहीं है। तो ये सारा इकोसिस्टम जो है यहाँ पर डेवलप्ड हो रहा है। और दूसरा एक जो है वो वसई क्रीक विच इज एक जो क्या इसको बोलते हैं, फेरी। जो फेरी जो है, जो प्रपोज वाटर वे इन्होंने बताया, वो फेरी जो है वो शुरू होने वाली है बहुत जल्द, और वो नायगांव को भी, नायगांव और वसई और बोरीवली को कनेक्ट होगा। उसके बाद बोरीवली से आगे तक कनेक्ट होगा। और जो पहला फेरी है वो यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से गोरबंदर रोड से शुरू होगा। तो जब गोरबंदर रोड से शुरू करते हैं तो उसका पहला स्टॉप डेफिनेटली नायगांव रहेगा, और नायगांव से एक फेरी जो जाएगी वो विरार के लिए, वसई विरार के लिए जाएगी, और दूसरी फेरी जो रहेगी वो बोरीवली तक आएगी, बोरीवली से फिर आगे तक भी जाएगी। तो वो फेरी का जो पहला स्टॉप रहेगा वो यहाँ पर कहीं पर रहेगा, गोरबंदर रोड के यहाँ से शुरू करेंगे, और वो नायगांव को क्रॉस करते हुए, यहाँ से क्रॉस करते हुए आगे बोरीवली तक आएगी। तो फेरी अभी बहुत जल्द शुरू होने वाला है, जिसका फेज 1 फेरी का काम चल रहा है, और उसके लिए जेटीज बनाना पड़ता है, जो कि वो फेरीज यहाँ से क्रॉस होते हुए आएगी। तो जब वो फेरी अगर यहाँ पर रुकती है, अगर फेरीज अगर गोरबंदर रोड से यहाँ पर रुकती है, तो डेफिनेटली उसको नायगांव और ये सनटेक मैक्स वर्ल्ड को भी उसका बेनिफिट मिलता है। सेकेंडली, विरार अलीबाग एक कॉरिडोर जो शुरू हुआ है, ऑलरेडी काम चल रहा है उसका, वो विरार से यहाँ से हाईवे से क्रॉस होते हुए आगे टुवर्ड्स बदलापुर और डोंबिवली होते हुए वो अलीबाग के तरफ जाएगा। तो जब वो कॉरिडोर शुरू होगा तो अगेन नायगांव को उसका बेनिफिट मिलेगा, सारे नायगांव को भी मिलेगा, और सनटेक मैक्स वर्ल्ड को भी उसका बेनिफिट मिलेगा जब वो हाईवे, जब कॉरिडोर जब वो शुरू होता है। तो ये सारा डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो इस जोन में हो रहा है, वैसे ही ऑलरेडी काफ़ी डेवलप्ड है। बहुत पहले से नायगांव ही जो है था वो थोड़ा डेवलपमेंट उसमें पहले कम था, लेकिन अभी जब से सनटेक वहाँ पर आया, उन्होंने सारा टाउनशिप और सारा जो एक प्रॉपर टाउनशिप जैसा लगना चाहिए, नायगांव का फेस ही उन्होंने चेंज कर दिया है। तो अब जो 150 एकर्स तो काफ़ी बड़ा होता है अपने आप में, एक बहुत बड़ा टाउनशिप बन जाता है उसमें अपने आप में। तो फेज 2 का अभी चल रहा है काम इसमें आगे, और फेज 3, फेज 4, फेज 5 चलेगा, तो आगे डेवलपमेंट होते रहेगा।
तो नायगांव जो है, दिस विल बी अ वेरी प्राइम लोकेशन आफ्टर वंस यू क्रॉस बोरीवली. सो नायगांव विल बी द प्राइम लोकेशन बिटवीन विरार टू बोरीवली. तो उसके बाद में ऐसा होगा कि लोग बोलेंगे नायगांव में कोई फ्लैट अवेलेबल है तो बताओ. थोड़े दिनों में ऐसा होगा. So this is all about ecosystem of the project. There is one more development which is coming up, which will be a metro line, which will be connecting from Mira Road, which will be somewhere from here. And this extension of metro line will be connecting towards up to Vasai and then further on. So which will be running parallel to this railway line. And now the metro line is somewhere up to Mira Road over here. अभी तो यहाँ पर दहिसर तक वो फिनिश क्लोज करते हैं उसको, उसका जो मेट्रो का जो स्टेशन है, तो वो एक्सटेंड होगा मीरा रोड, और मीरा रोड से नायगांव, और नायगांव से वसई और नाला सुपारा तक आगे एक्सटेंड होगा. तो एक मेट्रो का भी डेवलपमेंट चल रहा है, जो सनटेक वेस्ट, मैक्स वर्ल्ड या सनटेक पूरे सिटी को इसका बेनिफिट मिलेगा. फिर यहाँ पर कुछ ग्लिम्सेस आप देखोगे, जैसे रिटेल प्लाजा उन्होंने बनाया हुआ, ये बिल्डिंग का कॉम्प्लेक्स है. जो बिल्डिंग के हाइट्स आप देख रहे हो, फेस 1 में उन्होंने ग्राउंड प्लस 22 स्टोरी का बनाया है, फेस 2 में ग्राउंड प्लस 23 स्टोरी का बनाया है. और बाहर के तरफ जो स्पेशली रोड साइड के तरफ कुछ बिल्डिंग्स है, वहाँ पर कुछ रिटेल प्लाजाज भी है, शॉप्स भी है. और फेज 2 में भी अभी भी कुछ शॉप्स सेल करने के लिए, अगर किसी को शॉप में अगर इन्वेस्ट करना है तो मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं. तो शॉप का भी अरेंजमेंट, अगर किसी को कमर्शियल में इन्वेस्ट करना है तो शॉप में भी कर सकते हैं. रिसेंटली अभी रिलायंस स्मार्ट, उन्होंने सनटेक वालों ने रिलायंस स्मार्ट ओपन किया है रिसेंटली, अभी शायद महीना भर भी नहीं हुआ होगा उनका, तो महीने 2 महीने पहले. तो एक रिलायंस स्मार्ट आने से भी एरिया का जो है वो लोगों को एक कॉन्फिडेंट आ जाता है कि यस चलो सब्जी मंडी वगैरह सब अभी नज़दीक हो गई क्योंकि रिलायंस स्मार्ट आ गया है. तो कहीं पे बाहर जाने की, बहुत जगह जाने की ज़रूरत नहीं है कि रिलायंस स्मार्ट के अंदर आप जाओगे तो वहाँ पर एक ही जगह पर, जैसे डी मार्ट के अंदर आप जाते हो तो एक ही जगह पर आपको सब चीज़ मिल जाता है, वैसे रिलायंस स्मार्ट के अंदर आप जाते हो तो एक ही जगह पर सब कुछ आपको मिल जाता है. और रिलायंस स्मार्ट ऑलरेडी आ चुका है, ऑलरेडी इट इज़ ऑपरेशनल, इट इज़ वर्किंग ओवर देयर. सो विद दैट यू कैन इमेजिन के the complex is fully active, and before the possession the complex has been fully active, and phase 1 का तो अभी दिसंबर 2021, अभी 2 महीने बाद पोजीशन दे रहे हैं. तो यू कैन इमेजिन लोग आने से पहले ऑल द फैसिलिटीज एंड अरेंजमेंट एंड आउटर एमिनिटीज, जो फैसिलिटीज और एमिनिटीज जो चाहिए, इट इज ऑलरेडी वर्किंग ओवर देयर. Then there are some healthcare hospitals, as I told you before. Then this is a retail plaza which is showing in the picture here also. Then there is a creche जहाँ पर वर्किंग फैमिलीज होती है, अपने बच्चे को कहीं पर रखकर काम पे जाते हैं, फिर शाम को 4, 5, 6 बजे जब भी आते हैं तो वहाँ से पिकअप कर लेते हैं. तो क्रीच जो है वो बेसिकली चिल्ड्रन केयर facilities are there where you can drop your children there and pick your children later in the evening when you come back from work. So creche is also available. There is entertainment and multiplex zones are also there in this complex, and 4 to 5 good schools are there in this complex close by vicinity over here. So this is the image of Suntex Max World. So when you see over here, this is how the elevation of the building, and the building is very neat, clean and well colored with brown and white. Light shade color has been given, and it is very decent, and the cross ventilation for the building is good because there is a gap between these buildings over here. So the cross ventilation is good, and up to the distance, जहाँ तक आप डिस्टेंस पे आप देखोगे तो 7 माले से ऊपर कोई भी बिल्डिंग आजू बाजू में बनी नहीं होगी. तो यही एक कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर 22 माला और 23 माला, 22 स्टोरी और 23 स्टोरी का कॉम्प्लेक्स बन रहा है. तो वो इसी कॉम्प्लेक्स में बन रहा है. और यहाँ पर आप देखोगे प्लेंटी ऑफ ग्रीनरी इज देयर. आप क्लब हाउस देखेंगे, आप यहाँ पर जो स्विमिंग पूल है, फिर वो डेक है बैठने के लिए, जो चेयर्स है, स्विमिंग पूल जो वुडन फ्लोरिंग उस पर दिया हुआ है, और बहुत सारा ग्रीनरी दिया हुआ है. फिर यहाँ पर एम्पी थिएटर है, कुछ मल्टीपर्पज कोर्ट है, चिल्ड्रन प्ले पार्क एरिया है. जहाँ तक मैं पिक्चर में देख रहा हूँ वहाँ तक मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारा जो ग्रीनरी आप देख रहे हो और उसके साथ में जो क्लब हाउस आप देख रहे हो, जब ये रात को जब ये इस पे लाइटें जब जलेगी तो ये काफ़ी ग्लैमरस लगेगा और काफ़ी बेहतरीन लगेगा ये प्रोजेक्ट.
जो सनटेक का एक प्लस पॉइंट ये है कि इनका जो रेरा का जो डेट है फेज 1 का वो 2023 का डेट है, तो वो बिफोर टाइम दे रहे हैं फेज 1 का पोजीशन 1 ईयर बिफोर, तो 2021 दिसंबर में पोजीशन हो जाएगा फेज 1 का। और इसका भी जो रेरा का डेट है वो मेरे ख्याल से 2024 का है, लेकिन 23 के अंदर 2023 में मैक्स वर्ल्ड का जो है वो पोजीशन आपको दे दिया जाएगा। Then these are some amenities, like these are water bodies. You can walk from here. It's a long track, jogging track or walking track has been given, and some water bodies has been given over here. Senior citizens sitting area. Then multi-purpose hall is there, and fully equipped gym is given. Amphitheater is there. Multi-purpose court has been given. Then there's a kids play area and swimming pool also for the kids as well as for the elders. So these are all the amenities which I read before. All these amenities are given. There are 50 plus amenities are there in this complex. This is again, you see the image of the complex where you see the large ground has been given. It's a central park. So this park can be used for multi-purpose. This can be used for for the children to play. In the rainy season they can play football over here. Otherwise also they can play football over here. This ground basically can't be used for a cricket because cricket में नीचे जो pitch होता है उसको dig करना होता है. So this is basically you can use as a multi-purpose for football. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक गोल दिया हुआ है, यहाँ पर एक गोल दिया हुआ है, तो फुटबॉल के लिए इसको यूज कर सकते हैं आप. वॉकिंग के लिए इसको यूज कर सकते हैं. दिन में अगर किसी को बेयर फुट अगर ग्रास के ऊपर चलना है तो वो उस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं. सीनियर सिटीजनशिप अपने लाफिंग क्लब के लिए इसको यूज कर सकते हैं. तो इस तरीके से इस कोर्ट को, इस ग्राउंड को मल्टीपर्पज के लिए यूज किया जा सकता है. योगा और मेडिटेशन के लिए भी मॉर्निंग टाइम पे ये ग्राउंड को यूज कर सकते हैं. और इट्स बैडमिंटन कोर्ट. इट लुक्स लाइक अ बैडमिंटन कोर्ट ओवर हियर, एंड दिस इज लॉन्ग टेनिस कोर्ट ओवर हियर. सो lots of amenities are been given in this complex, and very well designed, very beautifully elegant look has been given for the complex. You see the entry lobby is also very good. Heighted entrance lobby has been given. This could be around 30 feet heighted entrance lobby with good fall ceiling, and even the sajja is provided outside. So when you take the car inside over here, so at least you can come out safe. मतलब बरसात के दिनों में स्पेशली जब होता है गाड़ियों से बाहर निकलते हैं तो यू डोंट हैव टू रश इनसाइड द कॉम्प्लेक्स. आराम से आप उतर के आप जा सकते हो बिकॉज देयर इज अ सज्जा आउटसाइड ओवर हियर. And again, this looks very decent and a very fine finishing of the entrance lobby of the complex when this type of sajja and entry lobby has been given in the complex. So it looks very good. And secondly, there is a water body over here, and surrounding you see there is good quality tiles they have provided over here. These are all anti-skid tiles are there, and good quality tiles are given over here. तो यहाँ पर कोई अगर बच्चा भागता है, कोई साइकिल चलाता है, कोई चलकर भी अगर जाता है तो skid नहीं होगा. These are all anti-skid tiles has been given in the complex here. When you see the isometric view of this complex of the amenities, you see the clubhouse over here. This is clubhouse. This is again a clubhouse, and again a good size swimming pool. It's a curved type swimming pool has been given here over here, and there is a sitting deck over here, the side of the pool, and it's a good garden. You can see this garden can be used for. So this garden can be used for multi-purpose. You can do meditation. You can use for laughing club, and for yoga. There's a basketball court over here. So these all amenities are provided. And this is master plan which I showed you earlier. Now when you see the unit plan, so this unit plan, so very first thing we will see the unit plan for this flat over here, and then we will see the unit plan of this. So इसका तो unit plan एक ही है, 3 BHK है, और इसमें जो है 1 and 2 BHK है.
तो ये जो पहले वाला जो लेफ्ट साइड वाला जो मैं आपको मास्टर लेआउट में जो मैंने बताया था, उसमें जैसे 8 फ्लैट है, तो 1, 2, 3 और 4, ये ऑपोजिट साइड में जो 4 फ्लैट है वो 1 BHK का फ्लैट है, और 1, 2, 3 और 4, ये जो 4 फ्लैट है ये 2 BHK के फ्लैट्स हैं with 2 staircase and 1, 2, 3 lift has been given. This is unit plan for 1 BHK, where you see the plan is very good. It's a rectangle hall. There's a dining space. So there is a dining table, and this is the living room here, where you can keep your TV over here, and this is the sitting arrangement, and these are the flower beds, and this is common washroom. This is kitchen where both the side platform has been given, and there is a dry balcony also. Kitchen where both the side platform is given, और उसके साथ में ड्राई balcony भी दिया हुआ है। और जब बेडरूम में आते हैं तो रेक्टेंगल बेडरूम है, जिसके साथ में ये वॉशरूम अटैच्ड है। तो 1 BHK का जो यूनिट प्लान है वो काफ़ी बेहतरीन है और काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। 2 BHK का अगर आप प्लान देखोगे तो वो भी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर फोयर एंट्रेंस है, एंट्रेंस में किचन दिया हुआ है विद ड्राई बैल्कनी, डाइनिंग, सिटिंग और लिविंग अरेंजमेंट, देन देयर इज अ फ्लावर बेड, देन 1 bedroom over here, this is washroom, this is 2nd bedroom which is attached. So again the 2 bedroom plan is good for Suntec Max World, and this is the tower only which has 3 BHK. So all these flats are 3 BHK flats when we see the single plan. So in single plan, when you see 3 BHK, there is an entrance, foyer entrance, so kitchen, dry balcony, both the side platforms are there, dining, living space here, flower bed, then you come inside, 1, 2 and 3. So bedrooms are distributed very well. उससे ये होता है कि यहाँ से भी खुला है, यहाँ से भी खुला है और यहाँ से भी खुला है, तो क्रॉस वेंटिलेशन अगर आप समझ लो, बेडरूम का कोई भी विंडो आप खुला रखते हो यहाँ पर, तो यहाँ से क्रॉस वेंटिलेशन यहाँ से लेके और हॉल तक क्रॉस वेंटिलेशन ऐसे फ्लैट्स में काफ़ी बढ़िया होता है। तो 3 बेड का प्लान भी काफ़ी अच्छा दिया इन्होंने। तो प्राइजेस की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो प्राइजेस में फेस 1 में इनके पास अभी हार्डली कुछ फ्लैट्स अवेलेबल है, तो फिर भी मैं आपको बता दूं, जिनको अगर पोजीशन अगर जल्दी लेना है, 2 दिसंबर 2021 ऑलमोस्ट रेडी है, मतलब अगर पोजीशन जल्दी लेना है तो 1 BHK 392 विल कॉस्ट अराउंड 35,50,000 which is including of GST on any floor, and 2 BHK 547 square feet is 52 lakhs which is including of GST. So this is for the phase 1, and you can make the 20% payment now and 80% you can make it on December when the possession is there. और हम लोग जो अभी बात कर रहे हैं मैक्स वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, जिसका अंडर कंस्ट्रक्शन में है, ये भी एक्चुअली अंडर कंस्ट्रक्शन, पर ये 3-4 महीने में पोजीशन हो जाएगा। और ये जो फेज 2 मैक्स वर्ल्ड है, इसका पोजीशन दिसंबर 2024 में है, पर डिलीवरी 2023 में हो जाएगा। एज पर रेरा 24 है, पर डिलीवरी 2023 में हो जाएगा, मिड ऑफ 2023, बिकॉज बाय वन कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, तो उसमें जो कंस्ट्रक्शन है काफ़ी फास्ट चलता है, और सनटेक का वैसे भी बिफोर टाइम ही डिलीवरी दे देते हैं। तो 1 BHK 407 कारपेट का 36,25,000 है, विच इज इंक्लूडिंग ऑफ GST। ओनली अदर चार्जेस यू हैव टू पे स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन एंड सोसाइटी डेवलपमेंट चार्जेस, विच इज आई थिंक 6% आप ऊपर का और पकड़ सकते हैं। 2 BHK 570 में ये स्लैब वाइज दिया हुआ है, विच इज 1 से 5 माले तक 45,25,000 है, और दिस इज अगेन agreement value including this agreement value, or this is including of GST. So again 2 BHK is 570 square feet. The slab has been given, जैसे 1 से 5 वाले तक 45,25,000 है, this is agreement value, जिसमें आपका GST included है। अगेन 3 BHK is 751, जो मैंने सिंगल टावर बताया ना, जिसमें सिर्फ 3 BHK है, उसमें 751 स्क्वायर फीट का स्टैंडर्ड कारपेट एरिया है, 6 फ्लैट स्टैंडर्ड कारपेट है सारा,
और उसका प्राइस जो है 60,75,000 ऑनवर्ड्स. सो दैट मीन्स ऑनवर्ड्स मीन्स अदर चार्जेस सेपरेट रहेगा, स्टैम्प ड्यूटी, जीएसटी, रजिस्ट्रेशन and society development charges. So these charges will be separate, which will be 11% of the agreement value. Now you have a payment plan for phase 2, like you can pay 10% now, 10% within 6 months from the date of the booking, and 40% you can pay on 19th slab. तो 19 स्लैब आते आते भी काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि 23 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो उसमें डेफिनेटली 24 स्लैब्स होगा. 23 फ्लोर की बिल्डिंग है तो 24 स्लैब्स होगा. तो 24 स्लैब्स होगा तो 19 स्लैब में 40% पेमेंट भरना है, और बाकी का 40% ऑन ओसी. ओसी का मतलब पोजेशन हो गया. जब ओसी आ जाता है, जिसको हम लोग ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट बोलते हैं, तो जब ओसी आ जाता है तो उस वक्त पोजीशन भी दे देते हैं, तो बाकी का 40% ऑन पोजीशन आ जाता है. तो ये पेमेंट फ्लेक्सिबिलिटी है डेवलपर के तरफ से, जिसका मुझे लगता है इसका बेनिफिट लेना चाहिए लोगों को. So Fred, this is all about Suntex Max World, and for booking you can call me on my number 7400138561. थोड़ा सा हिम्मत करोगे तो प्रॉपर्टी बनेगी, बिकॉज एक कहावत है कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे. इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट. रोम वॉज बिल्ट एवरी डे इज द राइट स्टेटमेंट. रोम वॉज बिल्ट एवरी डे. तो थोड़ा सा हम लोग ज़माने के साथ साथ चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. और यहाँ पर ऐसा है कि कहीं ना कहीं से आपको प्रॉपर्टी बनाना शुरू करना है, और ऐसे डेवलपर के साथ जब आप प्रॉपर्टी बनाना शुरू करते हो, कम बजट में, आप जब आउट ऑफ मुंबई या आउट ऑफ सिटी, पूना सिटी, या कहीं से भी आउटसाइड, या कहीं से भी वसई विरार, कहीं से भी आप सनटेक जैसे एरिया में, नायगांव जैसे एरिया में आप इन्वेस्ट करते हो, तो यहाँ का बेनिफिट आपको, एप्रिसिएशन का बेनिफिट आपको ज़रूर मिलता है. और कुछ नहीं तो आप इन्फ्लेशन को ज़रूर कैच करते हो. टू इफ़ यू डोंट कैच द इन्फ्लेशन, देन इन्फ्लेशन विल कैच यू. सो यू हैव टू चेस द इन्फ्लेशन ऑल्सो. तो हर 7 साल बाद, जैसे आप देखते हो कि महंगाई बढ़ती जाती है, हर 7 साल बाद रेगुलेशन आते रहता है, हर चीज़ चेंज होती रहती है. तो उस वजह से आपको आपकी लेगेसी बनाना आपको शुरू करना है, आपको अपनी प्रॉपर्टी बनाना शुरू करना है. अगर कुछ नहीं तो आपको अपना एक घर बनाना आपको अपना शुरू करना है, जो कि नायगांव जो है ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए. और डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू दिस चैनल. सी यू अगेन with one more video very soon. Thank you. Bye bye.